students, I'm Imani Sharma, your educator. I warmly welcome you all to yet another YouTube video, जिसमें we all are going to move forward with the UGC NET 14 दिसंबर 2023 में जो आपके questions पूछे गए थे. You guys know that in the previous videos that are present on our channel, I have made sure that we are solving questions from 6 December की shift. 14 दिसंबर के questions हम लोग solve करें, लेकिन I have made sure to segregate them based on the units that are there so that it becomes easier for you. अगर किसी ने literary theory को पढ़ा है, revise करा है, they want to see, they want to assess their knowledge on literary theory, criticism or cultural studies, they can view that particular video, so on and so forth. उसी तरीके से जो आज के वीडियो में क्वेश्चंस आने वाले हैं, they are from your unit of ELT, English language teaching, which will include questions related to majorly your linguistics वाला part. So when we try to learn about linguistics, कुछ basics हमें पता होते हैं. We know about morphemes, we know about phonemes, we know about pragmatics, so on and so forth. Homonyms, homophones, ये क्या होते हैं, right? So उसी तरीके से इन questions में आज आप लोग अपनी notebooks, pen, paper, etc. you'll keep sitting with them, and you'll make sure that with each question you read it carefully and then you look for the answer. Okay? So without any further ado, let's just start. The first question that I have for you all here is, which statement among the following defines a pigeon? Very commonly and a very important term usually seen in the linguistics sphere. What do you think is the right answer here? So you can pause the videos as I told you, because statements थोड़े लंबे हैं, options long हैं. You can pause the video and then when I'll be explaining, तो तब आप video जो है you can play it up. Alright? So the first question, इसका answer है option A. It is a language. Pidgin एक ऐसी language होती है that is a kind of lingua franca among speakers, though it is not a native language of anyone. एक बहुत ही easy सा example आप लोग को यहाँ पे देती हूँ. We know that we all were somewhere or the other, हम लोग को colonize करा गया था, ठीक है. एक point of time पे हमारे ऊपर अंग्रेजी राज था, British Raj was there. So during the colonial time periods, my dear students, in the colonial India, अंग्रेजों से बात करने के लिए ना Indians they found a way to talk to them, and that way उसने एक लैंग्वेज को जन्म दिया which came to be known as बटलर इंग्लिश. ये बटलर इंग्लिश थी तो थी क्या? अब ऑफ कोर्स इफ टू पीपल आर स्टैंडिंग देयर, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं पता, तो एक कॉमन ग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए they would want to talk, they would want to have conversations, right? So ये butler English, majorly it was some sort of an English which was spoken by the butlers and the cooks who were supposed to talk to the masters, the British people, to ask them कि खाने में क्या खाएंगे, so on and so forth, to talk to the English people, the babus and everything. So this is what we see in here. And when we see that इनको English, because English was not a native language of India, and Pidgin के बारे में हमने यही पढ़ा ना कि वो लोग जो इसको लिंगुआ फ्रांका बना लेते हैं एक लैंग्वेज को जो कि वहां की नेटिव नहीं होती है. तो इंडिया की नेटिव लैंग्वेज नहीं थी इंग्लिश. इट वाज ब्रॉट अप बाय द ब्रिटिश पीपल इन इंडिया, राइट? सो वी सी दैट how these people were somewhere or the other trying to talk in the language of the colonizer, the language of the person who has come, who is influencing the entire sphere. So जैसे हम एक sentence देखते हैं, मास्टर कमिंग नाउ. अब इसको ग्रामेटिकली देखें तो इट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस. इट डज नॉट हैव अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज नॉट कोई आर्टिकल नहीं लगा हुआ है. लेकिन सिर्फ अंग्रेज को समझाने के लिए अगर कोई फॉरेनर आता है, I don't know English language, I will say master coming here, so I would want to try to make sure that the other person is somewhere or the other understanding me, क्योंकि मुझे कुछ वर्ड्स इंग्लिश के आते हैं. पिजन उसी तरीके से काम करती है कॉमन ग्राउंड एस्टैब्लिश करने के लिए. तो इसको अगर राइट इंग्लिश में देखें तो वी नो दैट द इंग्लिश पर्सन विल अंडरस्टैंड इट एज द मास्टर इज कमिंग नाउ.
एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यू गिव राइस, ठीक है, क्योंकि ये दो तीन शब्द आते हैं, इनको अगर राइट इंग्लिश में यूज किया जाए तो इसका मतलब यही होता है ना, प्लीज गिव मी सम राइस, ठीक है, क्योंकि आप किसी से मांग रहे हो, यू रिक्वेस्टिंग समवन, तो गिव मी राइस या यू गिव राइस, ये आप सामने वाले को समझाने की कोशिश कर रहे हो थ्रू अ कॉमन ग्राउंड ऑफ सर्टेन इंग्लिश वर्ड्स दैट यू आर acquainted with, right? So this is what a pigeon is all about. Moving forward to the next question that we have in here, what is the appropriate term used for the study of language across time? आपको देखना है कि लैंग्वेज में क्या चेंजेस आए हैं, तो उस स्टडी को आप क्या कहते हो? व्हाट इज द राइट ऑप्शन हियर? यू कैन पॉज योर स्क्रीन्स. द राइट आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन ए. उस स्टडी को हम सब डायाक्रॉनिक स्टडी कहते हैं. कैसे कहते हैं उसको डायाक्रॉनिक स्टडी? लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू द लैंग्वेज इंग्लिश ओनली. अब हम सब लोग ने ओल्ड इंग्लिश, जब हम लोग एंग्लो सेक्शन एज पढ़ते हैं, इन दी ओल्ड इंग्लिश स्फेयर वी नो दिस पर्टिकुलर area, we know this particular area that we see the writings of multiple writers, जिसमें से एक राइटिंग उपज के आती है, that is known as Beowulf. Now we know the story of Beowulf because it has been translated into English language, the modern English language. But if I ask a person of today's era to read the Beowulf ki script, we will not be able to do that. I will not be able to do that because that is the English language at that particular time. It was not what it is now. So आज की English is very much different from the English that was there during the Old English period. उसी तरीके से जब चौसर आते हैं अपनी एज में, वो कैंटरबरी टेल्स जैसा वर्क लिखते हैं, ठीक है, he writes work in the Middle English age, he writes the work like the Canterbury Tales. ठीक है, उसमें वो जो इंग्लिश यूज करते हैं, एंड एट हिज particular time period we see that how the great vowel shift also happens, कि long vowels को कैसे pronounce करना है, so on and so forth. So we see that ये चीज धीरे धीरे लैंग्वेज में जब टाइम पीरियड के बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं, चौसर के बाद हम अगर देखते हैं शेक्सपियरियन टाइम पे, एलिजाबेथन टाइम पे, शेक्सपियर जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो बड़ी फिलोसॉफिकल होती है. To be or not to be, that is the question. So that language is something जो धीरे धीरे ठीक हो रही है. और उस लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जैसे, let me just give you an example of the word gay. अगर शेक्सपियर अपने टाइम पे ये वर्ड यूज कर रहे हैं, this word at that particular time period it means being jolly, being happy, but in today's time period it is also referred to the people, one, from the LGBTQ community as well. So we see that these things from the ये sexual identity की तरफ अब चली गई है. Of course it has a meaning of being happy as well associated with it, but you're understanding that how a language is shifting. तो जैसे पुराने टाइम्स पे संस्कृत होती थी, फिर वही चीजें प्राकृत में आने लगी तो लैंग्वेज डेवलप होने लगी, हिंदी आई, सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसी तरीके से हम देखते हैं शेक्सपियर के बाद अगर पोप की लैंग्वेज आती है, ठीक है, पोप की लैंग्वेज आती है, बिलिंडा लाफ्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वाज गे, ठीक है, बिलिंडा रेप ऑफ द लॉक में जब वो एग्जांपल्स देते हैं, तो वहां पे जो लैंग्वेज यूज करी जा रही है वो बड़ी ही बढ़ा चढ़ा के, क्योंकि ये न्यू क्लासिकल राइटर्स हैं. Then we move to the romantic age, then we move to the modern age. Modern language में, modern age में जो writers novels लिख रहे हैं, चाहे वो वर्जीनिया वुल्फ हैं, चाहे वो D.H. लॉरेंस है, they are writing in a language which is very much common to the language that we use in our daily lives in today's time. So how the language has developed over time is what we see in the diachronic study. Then we move to which among the following rightly defines homonyms? Huh? What do you think is the right answer here? The right answer is option B here, बच्चे. That is morphemes which sound the same but have different meanings.
उनको हम होमोनियम्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने एक वर्ड लिखूं, लेट्स जस्ट से आई एम राइटिंग अ वर्ड हियर, बैट एंड बैट, ये दोनों जो है दे आर साउंडिंग सेम बट दे माइट हैव डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ कोर्स। ये वाला बैट होगा एक एनिमल, चमगादड़ बोलते हैं जिसको हम, है ना, और ये होगा क्रिकेट बैट, अ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। एक हो जाता है नेक्स्ट वर्ड, हम देख सकते हैं होमोनियम्स का एग्जाम्पल बैंक, बैंक। अब इसी बैंक के दो मीनिंग हो सकते हैं, एक बैंक जहां पे हम अपने पैसे जमा कराते हैं और एक बैंक जो रिवर वाला होता है, एक मनी डिपॉजिट कराने वाला और एक रिवर वाला बैंक होता है, ये होमोनियम्स होते हैं। इसी से एक चीज और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी जो आपके नेट पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकती है। एक और चीज होती है, उनको हम बोलते हैं होमोफोन्स। होमोफोन यानी कि जो साउंड, फोन मतलब फोनिक साउंड क्या होता है, जो आवाज निकलती है, तो जो जिनकी आवाज सेम होती है, द वर्ड्स विच साउंड जिनका सिमिलर होता है बट डिफरेंट होते हैं उनके स्पेलिंग्स, जैसे कि आइल और आइल, ये दोनों बोल रही हूं, प्रोनाउंसिएशन में द साउंड, द फोनिक साउंड इज वेरी मच सिमिलर। आइल जब आप बैठते हो बस में या आप जब ट्रेन में ट्रैवल करते हो, आप जब प्लेन में ट्रैवल करते हो, तो एक विंडो सीट होती है, एक सीट ऑन द आइल होती है, आइल साइड पे सीट होती है ना, जो पैसेज के साथ वाली सीट्स होती है, दैट इज द आइल साइड। दूसरा आइल इज रिफरिंग टू आइलैंड। ठीक है, अफेक्ट, इफेक्ट, अफेक्ट विद एन ए, इफेक्ट विद एन ई, सो ये सारे होमोफोन्स हो जाते हैं जिनकी फोनिक साउंड सेम है, होमो है, सेम है, लेकिन उनके स्पेलिंग्स वेरी करते हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which amongst the following rightly defines pragmatics? Which amongst the following rightly describes pragmatics? Huh? Pause your videos again. The right answer to this question is option C here, that is the study of meaning in context. तो अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, if I write the word here, the sentence here, it's very hot in here, can you please crack the window? Question mark. Now the person is setting up a context कि बहुत गर्मी है, क्या तुम विंडो को खोल सकते हो। यहाँ पे the word here crack is being used, pragmatics का मतलब है कि कॉन्टेक्स्ट में समझ के सेंटेंस को समझना, मीनिंग को बनाना। तो यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि क्या तुम विंडो तोड़ दोगे, it is just the word that is being used in here, it is being used to add some sort of an effect, but अगर हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं कि बहुत गर्मी है, क्या तुम विंडो खोल दोगे, तो वी आर अंडरस्टैंडिंग इट, वी आर नॉट गोइंग इन द लिटरल सेंस ऑफ क्रैकिंग द विंडो लिटरली, राइट। सो दैट इज व्हाट इज प्रैग्मेटिक्स फॉर ऑल ऑफ अस, कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लैंग्वेज को देखना, ठीक है, लैंग्वेज को समझना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट रिलेट टू यूनिवर्सल ग्रामर? What do you think is the right answer here? The right answer to this question is option C here. ये नहीं है, it is not related to universal grammar. क्यों? क्योंकि universal grammar बच्चे एक ऐसा concept है which has been given by a very important linguist known as Noam Chomsky. स्पेशली उनकी बुक्स सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स एटसेट्रा, उनमें उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर की बात करी है। व्हाट डज ही मीन बाय यूनिवर्सल ग्रामर? तो मान लेते हैं ऑल ऑफ अस हैव बीन बोर्न एंड वी आर सिटिंग विद अ बॉक्स, उस बॉक्स में सबके पास सेम कलर कोडेड चीजें दी हुई हैं, लेकिन द वे यू आर गोइंग टू यूज देम दैट माइट वेरी, कुछ वर्ड्स के मीनिंग्स लेकिन कॉन्टेक्स्ट और चीजें सिमिलर हो सकती हैं। तो चॉम्स्की का मानना ये था कि ऑल अदर चिल्ड्रन who are born, all the people in the entire world,
ऐसा नहीं है कि उनको ग्रामर सीखनी पड़ती है, यूनिवर्सली ग्रामर सबके लिए सिमिलर होती है. देयर इज सम सॉर्ट ऑफ इनेट एबिलिटी इन द माइंड ऑफ अ पर्सन जो उसको हेल्प करती है सेंटेंसेस को एक पर्टिकुलर वे में अरेंज करने के लिए. वी आर नॉट द वंस, हम अपनी मदर टंग को, जैसे आई एम फ्रॉम पंजाब, लाइक I did not learn Punjabi, I acquired Punjabi, and when I acquired Punjabi, I did not know कि ये subject है, ये verb है, ये object है. मैंने rules नहीं याद करे, but through the universal pattern, the universal grammar of Punjabi that was there in my mind, मैं उन शब्दों को आसपास के अपने linguistic environment से सीख के उनको जोड़ने लग गई. ठीक है? That is universal grammar for all of you. Next question. Which of the following terms rightly defines inversion? What do you think? The right answer to this question is option B. A structure in which an auxiliary or other verb comes before its a subject. Simplest terms में अगर मैं आपको inversion समझाने की कोशिश करूं तो it means swap the order और shuffle sentences या shuffle verbs. इस तरीके से आप दो तरीके से हमारे इन्वर्जन को जो है यू कैन अंडरस्टैंड इट एज अ कॉन्सेप्ट, राइट. सो जब आप कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब एटसेट्रा उसको आगे ले आते हो या आप कोई एडजेक्टिव को आगे ले आते हो, विच आप यूजुअली तो बोलोगे दैट सनसेट इज ब्यूटिफुल. यूजुअली इन आवर नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज, ये हम नॉर्मल इंग्लिश की अगर बात करें तो हम नॉर्मल इंग्लिश में उसको बोलेंगे that sunset is beautiful. अब इसी को मुझे एम्फसिस डाल के या फैंसी बना के बोलना हो तो मैं इसको इन्वर्जन के साथ कैसे करूंगी, कैसे आई कैन नोट इट डाउन. आई कैन से दैट, वी कैन से ब्यूटिफुल इज दैट सनसेट एक्सक्लेमेटरी मार्क. ठीक है, तो इस तरीके से क्योंकि मैं उसको फैंसी बनाना चाहती हूँ या मैं बताना चाहती हूँ दैट थिंग इज वेरी मच सुपर इंपॉर्टेंट, सो वो चीज मैंने सेंटेंस के ऑर्डर को शफल कर दिया. एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे नॉर्मली आप बोलोगे इफ यू नीड हेल्प यू शुड आस्क मी. ठीक है, लेकिन अगर इसको और काइंड और एम्फसिस वाला बनाना हो आप कैसे कह सकते हो, शुड यू नीड हेल्प don't hesitate to ask. Should you need help, don't hesitate to ask. तो यूजुअली आप इसको बोलोगे don't hesitate to ask if you should need any help. नॉर्मली आप ऐसे सेंटेंस को फ्रेम करोगे, लेकिन शफल करके क्योंकि आपको फैंसी बनाना है, इंपॉर्टेंट बतानी है कोई चीज, तो आप उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को शफल कर देते हो, उसको इन्वर्जन बोलते हैं. ठीक है, सो दैट इज इन्वर्जन फॉर ऑल ऑफ अस. नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सी statement is rightly defining split infinitive? Now we know in English language gerunds and infinitives in grammar all of us must have done. Gerunds होते हैं जो इनके साथ ing लग जाता है, run, ing, ठीक है, ing, swimming. Infinitives वो होते हैं जो base verb form के साथ, जिसके साथ हम to लगा देते हैं, to run, to swim, to walk, to talk, to sing, to dance, right? Split infinitive क्या होता है? The answer to this question is option A here. A structure in which an adverb comes between two and the rest of the infinitive. तो जब आप split infinitive को कैसे समझ सकते हो कि दो infinitive जैसे to अगर हम यूज करने की कोशिश करें तो to के साथ हम कोई भी base form of verb लगाते हैं, right? तो she decided to bravely फेस द चैलेंजेस. अगर मैं ये सेंटेंस आपके सामने लिखती हूं कि शी डिसाइडेड फेस द चैलेंजेस. नाउ वी नो दैट इसमें जो वर्ड्स ये वाले हैं टू एंड फेस, ये दोनों इन्फिनिटिव है. शी डिसाइडेड टू फेस द चैलेंजेस. ठीक है, ये इन्फिनिटिव थे, लेकिन मैं इसको स्प्लिट इन्फिनिटिव क्यों कह रही हूँ, बेसिकली इनमें एक वर्ड आ गया है, एक एडवर्ब आ गई है
जो इन दोनों इन्फिनेटिव्स के वर्ड्स टू और फेस को अलग कर रही है, स्प्लिट कर रही है बाय बीइंग इन बिटवीन. सो दिस इज स्प्लिट इन्फिनेटिव फॉर ऑल ऑफ अस. दिस इज व्हाट वी मीन बाय द वर्ड स्प्लिट इन्फिनेटिव. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. It's a longer one. So you have 5 options here. And in options के आगे combinations दिए हुए हैं. So particularly read it very nicely, very carefully. All right. And also make sure to go through the codes of the shape. The codes of the shape. So the question में उन्होंने पूछा है कि wrong कौन सी statements है. So जो दो statements wrong है, that is option C for all of us. That is C and E जो है ये दोनों wrong है. अब एक बार let's just discuss why A, B and D they are correct. Fricative sound involves the close approximation of two articulars. तो अगर आपके दो articulars होते हैं, अगर आपने linguistics को थोड़ा सा पढ़ा होगा, आप articulars use करते हो to produce some sort of a sound. तो words like C, right? If we try to talk about fricative यही चीज करेगा, वो एक साउंड को क्लोज अप्रोक्सीमेशन ऑफ टू आर्टिकुलर्स की तरफ लेके आएगा. सी, जिप. सो आपके दो आर्टिकुलर्स जो है दे आर द वंस व्हिच आर बीइंग जॉइंट. ठीक है, सी, जिप, इनसे आपके ये वर्ड स, प, स, अगर आप इसको प्रोनाउंस करके देखोगे यू विल सी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ द क्लोज approximation of the two articulars, not just the lips but also the tongue as well. C, right? S, P, P. You see the word, जब आप P word बोल रहे हो, आपके teeth and आपका जो lower lip है वो touch हो रहा है. That is a fricative for you all. दूसरा हमारा है stops involve closure of the articulars to obstruct the airstream. आर्टिकुलेटर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी एयर स्ट्रीम को रोकने के लिए. जैसे हमारे पास साउंड्स होते हैं लाइक प, ब. ठीक है, तो यहाँ पे आई विल जस्ट नोट डाउन. स की साउंड हो गई, ठीक है, फ की साउंड हो गई. स्टॉप्स में आप नाम ही बता रहा है कि रोकना है, तो यहाँ पे साउंड हो गई प, ब. तो जैसे आप बोलते हो पैट, बैट, तो आपका जो मुंह है, आपके जो लिप्स हैं, दे आर बीइंग क्लोज्ड, दे आर बीइंग स्टॉप्ड फॉर सम पॉइंट ऑफ टाइम. सो पैट, बैट, right? So the lips are going inwards. तो एक stop आ रहा है air stream का हल्का सा. Then we move to a trill occurs when the articular is held loosely, fairly close to another articulator, so that it sets into vibration. Usually in the Italian spheres or in the Mexican spheres ये use होता है. तो जैसे आप लोग देखते होगे जब Italian people they pronounce the word margarita, तो र साउंड जो है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है. बरीतोस, तो र. तो जब ट्रिल वो होती है जब साउंड आपके मुंह से जो आ रहा है वो आर्टिकुलेटर्स को ऐसे फोल्ड कर रहा है कि एक वाइब्रेशन वाली साउंड जो है वो निकल रही है. ठीक है, नाउ कमिंग टू रेजिंग ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग टू फॉर्म अ सेकेंडरी आर्टिकुलेशन इज कॉल्ड वेलराइजेशन. ये स्टेटमेंट करेक्ट होती, लेकिन ये इनकरेक्ट क्यों है? वेलराइजेशन इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज वी सी दैट अगर आप इसमें मैं दो एग्जांपल्स दूंगी आपको, मिल्क एंड फील. इन दोनों वर्ड्स को यू कैन प्रोनाउंस. वेलराइजेशन सेकेंडरी आर्टिकुलेशन तो प्रोड्यूस करती है मिल्क, फील. तो लेट्स जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज. लेट्स जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर इमेज ताकि आप समझ पाए कि सॉफ्ट पैलेट कहां होती है. So look at the soft palate. When you use the word milk, the tongue is going a little backwards. Milk, right? And hard palate आगे होगी. Hard palate would be in the front. Sheep, right? So hard palate, I will tell you where would it be used. तो यहाँ पे front of the tongue hard palate होता है. तो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया. अगर होता बैक ऑफ द टंग, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट इज इन द बैक ऑफ द टंग. मिल्क, फील, ल का साउंड आप ले रहे हो तो वो आपके बैक ऑफ द टंग पे, आपकी जो ऊपर
सॉफ्ट पैलेट है, वहां पे टंग जो है इट इज बीइंग स्टिक देयर, राइट? सो इस वजह से ये रॉन्ग हो गया. एंड व्हाई इज ऑप्शन ई रॉन्ग? Raising of the back of the tongue while making another articulation elsewhere is called palatization. Back of the tongue नहीं, hard palate, मैंने आपको बोला hard palate आगे होगी, ठीक है? तो ये दोनों ऑप्शंस थोड़े से उलट दे दिए थे. पैलेटाइजेशन में आपके जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे, जैसे स साउंड है, ये इसी साउंड को अगर हम इंग्लिश में शीप पढ़े तो हम स को ही श भी पढ़ रहे हैं ना. तो जब कॉन्सोनेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और हमारी हार्ड पैलेट को टच करता है इन द फ्रंट ऑफ द टंग, नॉट इन द बैक, बैक में सॉफ्ट है, फ्रंट में हार्ड पैलेट है. तो व्हेन वी आर यूजिंग वर्ड सच लाइक प्योर, क्योर, सो प्योर, क्योर, यहाँ पे हमारी हार्ड पैलेट टच हो रही है. प्योर एंड क्योर में हमारी हार्ड पैलेट टच हो रही है. प्योर, क्योर, right? So all these things, I think they were sufficiently important for you all to understand why these options were incorrect. Velarization क्या होती है, palatalization क्या होती है, fricative, stops and trill I already told you. So I hope with the examples of the words that I've given forward, it is somewhere or the other understandable for you all, ताकि आप ऐसे questions को और attempt कर पाए, even if it comes with match the following, so on and so forth. So I'll see you guys in another video. Till that time, you guys keep on studying. Thank you so much and have a good day. Bye-bye.